Good evening and welcome to the first episode of Guftgu. This is an interactive platform where through the format of a radio show, our students will share their work, opinions, creative writing skills and talk about issues at hand. Today we have Sanchi Parashar from 11th Beta, Tanishq Dhingra from 11th A and Lakshita from 11th Alpha with us in the studio. Our topic for the month is discipline and good habits, you can say. Each guest of the day attempted to compose a verse on the topic discipline and Adate. So let's begin our Guftgu with Sanchi. Hi Sanchi. Good evening, sir. So how does it feel, if you can tell me, to be the first guest of this very first episode of Guftgu? First of all, sir, I would like to thank you for taking me as a part of this very first episode of Guftgu, and I am very much delighted and I am feeling great to be on this show. Alright, so we feel that discipline is a very important thing for every person's life, whether it be students or elders or teachers or parents or any individual you see randomly. So what do you think, what is your idea of discipline? Why do you think discipline, especially for a student, is very important? Without discipline, humans can't be human. Like, we are just like animals without discipline. Discipline puts us in a form, a systematic way of life and action. And it is not only important in the life of student, but in the life of every individual in the world. Because without discipline, we'll all start fighting and chaos will be in the world. So you mean to say that discipline helps us to have a self-regulation and strike a balance. Alright, so you were given the task and you were asked to create and write something on discipline. So what would you like to share with us today in this show? आज मेरा टॉपिक है अच्छी आदतें एंड इस पर मैंने एक शायरी तैयार की है। ये शायरी एक ऐसे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो समय की दौड़ में आगे बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं इस दौड़ में उसने अपने आदर्शों को, अपने अच्छी आदतों को गिराता चला गया है एंड नाउ ही यर्न्स फॉर दोज आदतें एंड दिस शायरी इज फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट ही फील्स एंड इज विलिंग टू कलेक्ट बैक दोज गुड हैबिट्स. Alright, sounds very interesting concept. So चलिए सुनते हैं आपकी वर्जन ऑफ अच्छी आदतें. चलिए सुनाइए. अच्छी आदतों को मझधार में छोड़ो, अच्छी आदतों को मझधार में छोड़ो. हम काफिरों के किनारे उतर आते हैं. आज तो पतझड़ की टूटी पत्तियों की तरह, आज तो पतझड़ की टूटी पत्तियों की तरह हम अपना ईमान कहीं गिरा आते हैं. मासूम से मन को सिखाए थे जो आदर्श, मासूम से मन को सिखाए थे जो आदर्श, जिंदगी की दौड़ में उन्हें भुला आते हैं. आज तो पतझड़ की टूटी पत्तियों की तरह हम अपना ईमान कहीं गिरा आते हैं. चख रहा था झूठे सपने में, चख रहा था झूठे सपने में, अब शहद भी खट्टा लगता है. उन आदतों के वापस मिलने की उम्मीद से आज मन उन टूटी पत्तियों को समेटने लगता है. थैंक यू सर. वेरी हार्ड टच. बहुत ही उम्दा लिखा आपने. तो ये थे साची के कुछ वाइज वर्ड्स एंड रिफ्लेक्टिव थॉट्स आई कैन से. और इसी सोच के साथ दिस फर्स्ट सॉन्ग फॉर द इवनिंग इज फॉर ऑल माय ऑडियंस आउट देयर. जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द म्यूजिक.
So our next participant or our guest, as we call it in our studio, is Tanishq. Hi Tanishq, welcome to the studio of Guftgu. Good evening, sir. Alright, so आज हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन एंड अच्छी आदतों के बारे में, राइट? सांची ने कहा कि डिसिप्लिन के बिना there will be chaos in the world. It helps us to strike a balance. आपको क्या लगता है as an elder brother or if you have a sibling, कोई individual अगर है जिनके, do you have any sibling? Yes, yes. Alright, makes it interesting a question. तो अगर आपका sibling है तो आपके ऊपर क्या responsibility होती है, या फिर what do you think that is the responsibility of an individual or who has a sibling, that why that individual, the elder one especially, has to be disciplined, or discipline उस situation को कैसे संभालता है, and how does it help really? What do you think, Tanishq? Sir, if the elder brother is disciplined, sir, it acts or sets as an example for the younger brother. He'll learn from the elder brother that the brother is disciplined, and he develops his personality, and that's it. So you mean to say the younger one follows the footsteps of the elder one? तो जिम्मेदारी होते हैं elder one के ऊपर कि किस तरीके से वो benchmark set करे अपने family में. Fair enough. तो आप हमें क्या सुनाएंगे? आपने क्या लिखा है? What have you created on this particular topic? Sir, I have just came into the class 11th from 10th, so it's there was a direct jump from 10th in the education system. So, sir, I have just seen a perspective from the that a person which has passed out from the school, and thinking about the past experiences, how the teachers told us to be sincere, disciplined, and the manners and the अच्छी आदत they told about. So interesting. So सांची ने जहाँ हमसे शेयर किया कि एक इंडिविजुअल जो अपनी आदतें खो चुके हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि what has he lost, and a prayer to get back those अच्छी आदतें and good habits. So you have traveled to a future self beyond your school days. You're in 11th now, right? But आप assume कर रहे हैं कि आप स्कूल आपका खत्म हो चुका है, so you have crossed 12. And how the discipline and अच्छी आदत of the school shaped you as a person. तो शायद वो आपके पर्सपेक्टिव है. चलिए सुनाइए आपने क्या लिखा है. वो भी एक ज़माना था जब टीचरें हमें अच्छी आदतें सिखाया करते थे. वो भी एक ज़माना था जब टीचरें हमें अच्छी आदतें सिखाया करते थे. पर हम भी बड़े मनमौजी थे, कहाँ किसी की सुना करते थे. मीठी ज़बान, अच्छी आदत, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं. मीठी ज़बान, अच्छी आदत, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं. मगर एक बार अच्छी आदतों का साथ छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछतावे होते हैं. Interesting. So you talk about regretting if you give up on your good habits. Indeed, school often becomes a place, a second home to children. And without us realizing it, it shapes thousands and thousands of children over the years, influences their mind, and sets, standard, benchmark, and gives back to the society. शायद इसीलिए स्कूल छोड़ने के बाद काफ़ी बच्चे कहते हैं कि the school years were the best years of our life. तो शायद उस वक्त हम समझते नहीं हैं, लगते हैं कि बहुत डिसिप्लिन के लिए फोर्स कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हर चीज़ में बोला जा रहा है हमको. Sometimes students might be feeling like that. But I think in the long run, we all understand that there's a reason behind it. We are helping to mold the characters of the students, and that really, really helps. तनिष्क का लिखा हुआ जो लाइंस थे शायद यही बोलते हैं कि he said that अच्छी आदतें हमेशा लोगों को respect earn करने में help करते हैं. So I think that's very true that if you are having good habits, that will definitely set you, at a particular place in the society that will make you earn respect. So on that note, we have our next song. So this is for all of you. कोई कोई आंखों पे जो मीठे मीठे सपने, क्या ये दिल करे, पहले पहले दिन की ये नई नई सुबह आओ चिल करे. हमको चबाते जाए, सबको बताते जाए अपनी हसरतें. यार मत भूले जगह है ये बड़ी कुल, सुनो सुनो जरा लेट मी से. भूलेंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 ना.
सीखेंगे हम ये यही है क्या गलत क्या सही स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 आएंगे ना आएंगे ना Yo listen up now school's out hear the bell ring तेरा क्या होगा I'ma do my thing I'ma be rich dressed in bling I'ma spread ishq and make you sing school's out hear the bell ring तेरा क्या होगा I'ma do my thing I'ma be rich dressed in bling I'ma spread ishq and make you sing थ्योरी में कमजोर है प्रैक्टिकल चैंपियन तोड़ दे हम दीवारों को है बोन्स में कैल्शियम पढ़ने से जो हो ना हो टीचर से प्यार हो फ्यूचर हो रास्ते पे आंखों में स्टार्स हो डर वाले घर छोड़े जो भी मिले उसे छेड़े मस्ती में चले कीड़े बने खाने लगे ऐसे क्यों किताबों को चश्मे लग गए साइंस पढ़े आर्ट्स पढ़े दिन पढ़े रात पढ़े कुछ भी ना पढ़े सर पे जो डंडे हैं सिलेबस गंदे हैं फिर भी हम कहें भूलेंगे हमको नहीं सोचेंगे हम भी कभी स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 सीखेंगे हम ये यही है क्या गलत क्या सही स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 आएंगे ना All right, that song did bring back a lot of school memories, even of mine, to say the least. Our third guest this evening is Lakshita. So, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं. So, Lakshita, why do you think discipline is very, very important? I think discipline is very important in one's life because discipline helps in building up the personality of a person, and being a disciplined person, a person can achieve his or her goals easily, and it also helps in time management, and a person can become punctual if he or she is in a discipline. All right, so punctuality and time management you think is also related to discipline. You were asked to prepare something and write something on this particular issue. So what have you written on this particular topic? So I have written some lines in Hindi, and I would like to share it with you and everybody else. All right, please go ahead. दिल से दिल को छू जाएं जो वो है अच्छी आदतें दिल से दिल को छू जाएं जो वो है अच्छी आदतें अच्छे कर्मों की लिस्ट में जुड़ जाएं जो वो है अच्छी आदतें अपनेपन से एक बार अपनाकर तो देखो अपनेपन से एक बार अपनाकर तो देखो हर मुश्किल का हल ढूंढ लेंगी आपकी अच्छी आदतें Interesting. So very nicely written. We now move to the next segment. We are very delighted to have with us Mr. Akshay Kumar Gautam, the music teacher of the school. So Akshay sir हमारे बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं. चलिए उनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं और बात करके जानते हैं कि बच्चों के लाइफ में या एक इंडिविजुअल के लाइफ में या अगर हम किसी संगीतकार की बात करें या म्यूजिशियन की बात करें तो उनके लाइफ में डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट होता है. वेलकम टू द स्टूडियो सर. थैंक यू सर. सर आप हमें ये बताएं कि एक म्यूज़िक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोले तो डिसिप्लिन एक बच्चे के लिए अगर वो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? सर डिसिप्लिन के साथ साथ सबसे पहले तो गुरु का सम्मान, जो गुरु का सम्मान बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में, जो कि मैं भी अपने गुरु का आज करता आ रहा हूँ और अभी भी करता हूँ. रियाज, डेली रियाज, गुरु का सम्मान, जो गुरु सिखा रहा है रिस्पेक्ट करो और उनसे सीखो, जितना मार्गदर्शन दे रहे हैं वो उसने उनसे मार्गदर्शन लो और जो भी चीज़ वो फॉलोअप करा रहे हैं छोटी से छोटी चीज़ें बारीक से बारीक चीज़ें रियाज में क्या हुआ, मुर्की, खटका, अलंकार, आलाप, वो एक एक चीज़ आप हमसे सीखिए क्योंकि म्यूज़िक तो एक समंदर है, संगीत एक समंदर है, वो कभी कंप्लीट भी नहीं हो सकता और लर्निंग पीरियड पे सभी रहते हैं, हम भी लर्निंग पीरियड पे रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आज सीखा कल एब्सेंट या परसों एब्सेंट या 2 दिन में म्यूज़िक आना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. और अलंकार से आप स्टार्टिंग कीजिए, बहुत सारे अलंकार ऐसे हैं कि बेसुर को भी सुर में ला देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आवाज़ ख़राब है तो मैं नहीं करूँगा, मैं इससे तो गाया नहीं जाता. अगर आपके पास आवाज़ है तो आप म्यूज़िक को कर सकते हैं. तो आपके हिसाब से ये है कि अगर एक पैटर्न सेट कर लिया जाए, एक रूटीन सेट कर लिया जाए तो कोई भी म्यूज़िक को सीख सकता है, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू बी इन डिसिप्लिन. एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो होनी चाहिए.
बिल्कुल। तो आप आज हमारे ऑडियंस के लिए ऐसा कोई गाना है जो आप उनको डेडिकेट करना चाहें? हाँ सर, ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है, पर मेरे अपने एक बच्चों के लिए मैंने एक सॉन्ग किया है जो अभी मैं कुछ गुना देता हूँ, कुछ लाइन्स ऐसे। रूठे ख्वाबों को बना लेंगे, उड़ती पतंगों को थामेंगे, आहा है जज्बा, हो है जज्बा, सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा। थैंक यू सर, बहुत खूब। चलिए इसी गाने को आगे ले चलते हैं और आज हमारे सारे ऑडियंस के लिए यही अगला सॉन्ग आप सबके लिए। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा। रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी हार कभी, गम तो यारो होंगे दो पल के मेहमान। रिश्ते दहलीजे भी लांघेंगे, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे, आंसू कभी मोती कभी, जा भी मांगे यारो कर देंगे कुर्बान। बिसरे यारों को बुला लेंगे, सोई उम्मीदें जगा लेंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। Whether be it music or be it arts, whether be it academics or be it simply sports, you might be a teacher or a student, you might be a man running the house or a woman taking care of the family and juggling work. You can be anybody out there in the street. The most important facet that defines a human being is his sense of discipline and order. If you inculcate this skill, if you inculcate this value, success shall always be by your side. आंसू कभी मोती कभी, जा भी मांगे यारो कर देंगे कुर्बान। बिसरे यारों को बुला लेंगे, सोई उम्मीदें जगा लेंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। On this note, I end today's show. Until we meet again, I pray for everyone's goodness and well-being. This last number is an invocation to bring in some positive and good energy to all our listeners out there. Until we meet again, this is me, Kaushik Moitra, signing out. चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वा
विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व।